Hello and welcome to all my viewers in today's class. Exercise 13.2, book NCERT, Exponent and Powers, class 7th. We are here with exercise 13.2. 13.1 is being discussed in the previous video. If you haven't seen that, please go and watch it again. If not, please let me know about in the comment section about your doubts about that particular exercise. Fine? Okay, now 13.2 exercise using law of exponents simplify and write the answer in the exponent form. पहली बात तो हमें law of exponent का पता होना ज़रूरी है before doing this exercise. Law of exponents are if we have same base a raised to the power m multiply by a raised to the power n. जब हमारे पास बेस सेम होते हैं, बीच में मल्टीप्लाई का साइन होता है, तो पावर्स हमेशा ऐड हो जाती हैं. पावर्स विल बी एडेड. ओके, दिस इज फर्स्ट लॉ. Second law says when we have same base but we have division sign between them, तो powers will be subtracted. a raised to the power m minus n. Multiply है तो add, division है तो minus. Okay, third, power of a power, एक पावर और उसकी भी कोई पावर है तो power of a power gets multiplied. It will become mn. Power of a power gets multiplied. Now fourth, कोई भी नंबर आपके पास है, अगर उसकी पावर 0 है, द आंसर विल बी 1 ऑलवेज. चाहे कैसा भी नंबर हो, नेगेटिव पॉजिटिव डजेंट माइंड, तो उसकी जो पावर अगर 0 बन जाती है, दैट आंसर विल ऑलवेज बी 1. ओके, विद दैट वी कैन बिगिन विद आवर एक्सरसाइज 13.2. ओके, हाउ इट इज. क्वेश्चन नंबर 1, 3 raised to the power 2 multiply by 3 raised to the power 4 multiply by 3 raised to the power 8. बेस आर सेम. बीच में कौन सा साइन है? मल्टीप्लाई का साइन है, तो पावर्स क्या हो जाएंगी? ऐड हो जाएंगी. ओके, लेट मी सी द क्वेश्चन. 3 raised to the power 2, 3 raised to the power 4 एंड 3 raised to the power 8. आंसर आपको एक्सपोनेंट की फॉर्म में ही छोड़ना है. 3 3 3 बेस सेम है, बीच में मल्टीप्लाई का साइन है, तो पावर्स ऐड हो जाएंगी. 2 + 4 + 8. 2 + 4 6, 6 + 8 6 + 8 14. 3 raised to the power 14. एक्सपोनेंट की पावर में आंसर छोड़ना है, मतलब ऐसी ही फॉर्म में छोड़ना है, सॉल्व नहीं करना है. दिस विल बिकम योर आंसर. नेक्स्ट इज 6 raised to the power 15 डिवाइड बाय 6 raised to the power 10. बेस सेम, डिवाइड का साइन. बेस सेम, डिवाइड का साइन, तो पावर सब्ट्रैक्ट हो जाती है. 6 raised to the power 15 minus 10, 6 raised to the power 5. ओके, नेक्स्ट इज a raised to the power 3 multiply by a raised to the power 2. बेस से मल्टीप्लाई फर्स्ट लो. a raised to the power 3 + 2, it will be a raised to the power 5. Next is 7 raised to the power x multiply by 7 raised to the power 2, that is 7 raised to the power x plus 2, and x plus 2 it will remain same, 7 raised to the power x plus 2. 5 raised to the power 2 whole raised to the power 3, power of a power, divide by 5 raised to the power 3. पावर ऑफ ए पावर तो मल्टीप्लाई हो जाती है. थर्ड लो, पावर ऑफ ए पावर इट विल बी 6, डिवाइड में 5 raised to the power 3. बेस सेम, बीच में डिवाइड का साइन, तो पावर सब्ट्रैक्ट हो जाएंगी. 6 - 3 3. ओके, नाउ नेक्स्ट 2 raised to the power 5 multiply by 5 raised to the power 5. यहाँ पे पावर्स सेम है, बेस मल्टीप्लाई हो जाएंगे. देखो पावर्स सेम है, बेस अलग अलग है, तो ये क्या हो जाएगा? बेस को मल्टीप्लाई कर दो, पावर वही रह जाएगी. पावर कितनी होगी? 5. बेस को मल्टीप्लाई कर देते हैं, 10 raised to the power 5. सेम वे a raised to the power 4, b raised to the power 4. पावर सेम है, बेस आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे, दोनों सेम है. ये बेस मल्टीप्लाई होकर क्या बना देंगे? a b, और टोटल की पावर क्या बन जाएगी हमारे पास? 4 बन जाएगी. नेक्स्ट 3 raised to the power 4 whole raised to the power 3. पावर ऑफ ए पावर गेट्स मल्टीप्लाई, दैट मीन्स 3 raised to the power क्या हो जाएगा? 12 आपके पास. नाउ द नाइन्थ पार्ट ऑफ इट. नाइन्थ पार्ट कहता है 2 raised to the power 20 डिवाइड बाय 2 raised to the power 15 मल्टीप्लाई बाय 2 raised to the power 3. पहले इनको सॉल्व कर लेते हैं, ब्रैकेट वाले को. 2 raised to the power, डिवाइड का साइन है, पावर सब्ट्रैक्ट कर दें. 5 मल्टीप्लाई बाय 2 raised to the power 3. बेस सेम है हमारे पास, और बीच में मल्टीप्लाई का साइन है, पावर्स को हम क्या कर देंगे? ऐड कर देंगे. 10th पार्ट ऑफ इट 8 raised to the power t डिवाइड बाय 8 raised to the power 2. बेस सेम, बीच में डिवाइड का साइन है, तो पावर्स क्या हो जाएंगी? पावर्स विल बी सब्ट्रैक्टेड. इनका कोई फर्दर सॉल्यूशन नहीं है, वी विल लीव इट हियर ओनली. ओके, दिस इज हाउ वी कैन सॉल्व क्वेश्चन नंबर 1 ऑफ एक्सरसाइज 13.2. लेट अस सी क्वेश्चन नंबर 2. क्वेश्चन नंबर 2,
Express and simplify and express each of the following in exponent form. 2 raised to the power 3 multiply by 3 raised to the power 4 multiply by 4 divide by 2 3 multiply by 32. ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल तो हम इसको कैसे करेंगे, ये जो नंबर है जिसको हम फर्दर ब्रेक डाउन कर सकते हैं, हमें उन्हें ब्रेक डाउन करना पड़ेगा. लाइक 4 इन 32. 2 बहुत स्मॉलेस्ट है और नहीं टूट सकता, 3 भी नहीं टूट सकता, ये 3 भी नहीं टूट सकता, बट ये दोनों टूट सकते हैं. कैसे? 2 raised to the power 3 multiply by 3 raised to the power 4 multiply by 4 can be written as 2 raised to the power 2. 2 2 जा 4. लिखने का तरीका चेंज किया, बस एक्सपोनेंट की पावर फॉर्म में कन्वर्ट किया. 3 multiply by 32 can be written as 2 raised to the power 5. How? Let me show you. 32 को हम कैसे लिख सकते हैं, देखो 2 16 2 8 2 4 2 2 2 1 1 2 3 4 5. 2 को कितनी बार मल्टीप्लाई किया, 5 टाइम्स, तो क्या आ गया 32. वही किया है. 32 को कितनी कैसे लिख सकते हैं हम, 2 raised to the power 5. अब करें सॉल्व. देखो 2 raised to the power 3 2 raised to the power 2 और बीच में मल्टीप्लाई है तो पावर्स इन ऐड हो जाएंगी. 3 + 2 5 मल्टीप्लाई बाय 3 raised to the power 4 और नीचे हमारे पास क्या है, 2 raised to the power 5 यहाँ पे है और 3 यहाँ पे, मतलब मैंने इसको इधर लिख दिया और इसको इधर, कोई प्रॉब्लम नहीं है. ठीक है. अब 2 raised to the power 5 ऊपर भी है और 2 raised to the power 5 नीचे भी है. दे कैन बी कैंसल्ड. और यहाँ पे देखो ये बच गया 3 raised to the power 4 और नीचे 3. बेस सेम है, बीच में डिवाइड का साइन और जिसकी कोई पावर नहीं होती उसकी पावर 1 होती है. ओके, तो जब बेस सेम और बीच में डिवाइड का साइन होती है तो पावर्स क्या हो जाती है, सब्ट्रैक्ट. मैंने इस 4 में से इस 1 को क्या कर दिया, माइनस. आंसर क्या आ जाएगा, 3 raised to the power 3. आंसर को एक्सपोनेंट की फॉर्म में ही छोड़ना है. दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन. ओके, let us see second part of it. 5 raised to the power 2 whole raised to the power 3 multiply by 5 raised to the power 4 and here we have divide 5 raised to the power 7. देख लेते हैं सॉल्यूशन. पावर ऑफ ए पावर गेट्स मल्टीप्लाइड तो 5 की पावर 6 मल्टीप्लाई बाय 5 की पावर 4 डिवाइड 5 की पावर 7. बेस सेम, बीच में मल्टीप्लाई का साइन, पावर्स ऐड हो जाती हैं. 6 + 4 10 डिवाइड बाय 5 raised to the power 7. बेस सेम, बीच में डिवाइड का साइन, तो 5 raised to the power 10 - 7 कितना हो जाएगा आपके पास आंसर विल बी 3. ओके, थर्ड पार्ट ऑफ इट 25 raised to the power 4 डिवाइड बाय 5 raised to the power 3. पहले हम इस 25 को ब्रेक डाउन करेंगे. अगर ये ब्रेक हो सकता हो तो हम इसको ब्रेक डाउन करेंगे. 25 कैन बी रिटन एज 5 raised to the power 2, है ना. 5 raised to the power क्या होता है, 2. 25 और इसकी पावर 4 क्वेश्चन में गिवन है 4. 5 raised to the power 3. Now we will solve it further. Power of a power gets multiplied. Divide by 5 raised to the power 3. बेस सेम, डिवाइड का साइन, तो पावर्स सब्ट्रैक्ट हो जाती हैं. 5 raised to the power 5 will become your answer. Okay, fourth part of it. 3 raised to the power 7 divided by 3 raised to the power 4 multiply by 3 raised to the power 7. Sorry, 3 raised to the power 3. 3 raised to the power 7, ऊपर वाला बिल्कुल सेम, नीचे बेस सेम, बीच में मल्टीप्लाई का साइन, तो पावर्स को आप क्या कर देंगे, ऐड. 3 + 4 7, ऊपर भी सेम नीचे भी सेम, तो आंसर क्या बन जाएगा, 1. ओके, फिफ्थ 2 raised to the power 0 plus 3 raised to the power 0 plus 4 raised to the power 0. I told you the fourth rule, किसी भी नंबर की पावर 0 1 plus again 1 plus again 1. Answer will be 3. Okay, sixth part of it. This was sixth part. I'm sorry what I have done here. अच्छा, एक थर्ड वाला पार्ट रह गया, फोर्थ वाला एक्चुअली, फोर्थ वाला पार्ट हमारे पास रहता है. ओके, दैट आई विल डू लेटर. ये हमारे पास फिफ्थ है, ये हमारे पास सिक्स्थ, ये सेवन्थ और थर्ड में भी आपको करके दिखा देती हूँ. दैट इज स्किप्ड. अदरवाइज थर्ड पार्ट आई एम लिविंग फॉर यू. जो इसका फोर्थ पार्ट है, फोर्थ पार्ट जो है वो आप लोग ट्राई करें. दिस वन, ओके, दिस वन इज लेफ्ट. ओके, यू कैन ट्राई दिस क्वेश्चन. देखो 11 11 दिख रहा है, 21 को ब्रेक डाउन कर लेना 3 और 7 के टर्म्स में. ओके, दिस क्वेश्चन कैन बी सोल्व्ड लाइक दिस बोथ आर सिमिलर क्वेश्चंस. ये समझ आ गया तो ये भी समझ आ जाएगा आपको. डू इट बाय योरसेल्फ. अगर नहीं आता है समझ तो आप मुझे बताएं. 2 raised to the power 3 multiply by 3 raised to the power 2 raised to the power 0 3 raised to the power 0 4 raised to the power 0. ये क्वेश्चन भी मैं आपके लिए छोड़ती हूँ. बिल्कुल सिमिलर ऊपर क्वेश्चन रखा है, बट वहाँ पे एडिशन था, यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन है. नाइन्थ पार्ट ऑफ इट 2 raised to the power 8 multiply by a raised to the power 5
और नीचे क्या है मेरे पास 4 रेज टू द पावर 3 और a रेज टू द पावर 3। 4 को हम ब्रेक डाउन कर सकते हैं ना, येस वी कैन डू। 2 रेज टू द पावर 8, a रेज टू द पावर 5, 2 रेज टू द पावर 2 और फिर उसकी पावर 3। 4 कैन बी रिटन एज 2 रेज टू द पावर 2 और यहाँ पे a रेज टू द पावर 3। 2 रेज टू द पावर 8, a रेज टू द पावर 5, 2 रेज टू द पावर 6 हो गया, पावर ऑफ ए पावर गेट्स मल्टीप्लाइड, और a रेज टू द पावर 3। अब देखो बेस सेम और डिवाइड हो रहा है तो पावर सब्ट्रैक्ट हो जाएंगी, 2 रेज टू द पावर 2। सेम वे बेस सेम और पावर और बीच में डिवाइड का साइन तो पावर सब्ट्रैक्ट हो जाएंगी, a रेज टू द पावर 2। अब देखो बेस सेम है, सॉरी पावर सेम है तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, पावर तो ये बन जाएगा और ये हमारा क्या बन जाएगा 2a। दिस विल बी योर आंसर। दिस ऑल्सो यू कैन राइट, दिस ऑल्सो यू कैन राइट, ये ज़्यादा बेटर है। ठीक है, 10th पार्ट ऑफ इट a रेज टू द पावर 5, ये भी आप बिल्कुल कर सकते हैं इजीली, ये पार्ट भी मैं आपके लिए छोड़ सकती हूँ। ठीक है, ये वाला पार्ट भी आप ट्राई करें खुद से, ये वाला पार्ट आपके लिए बिल्कुल आसानी से छोड़ा जा सकता है। इवन 11th भी आप कर सकते हैं, थोड़े से हिंट मैं दे देती हूँ आपको। 4 रेज टू द पावर 5 मल्टीप्लाई बाई a रेज टू द पावर 8, b रेज टू द पावर 3, बिल्कुल ईजी क्वेश्चन है, बहुत ईजी। a रेज टू द पावर 5, b रेज टू द पावर 2, ये तो चला ही गया। बेस सेम और बीच में डिवाइड तो पावर सब्ट्रैक्ट कर दें, a की पावर 3। बेस सेम, बीच में डिवाइड का साइन तो पावर सब्ट्रैक्ट कर दे, b रेज टू द पावर 1 बच जाएगा जो कि लिखने की जरूरत नहीं होती। दिस कैन बिकम योर आंसर। हिंट क्या, मैंने पूरा ही सॉल्व कर दिया। ठीक है, दिस वॉज 11th एंड लास्ट पार्ट ऑफ इट 12th। 2 रेज टू द पावर 3 मल्टीप्लाई बाई 2 होल रेज टू द पावर 2। पहले इनको कर ले, जिसकी कोई पावर नहीं होती उसकी पावर को हम 1 लेके चलते हैं। बेस सेम, बीच में मल्टीप्लाई का साइन, पावर्स को ऐड कर दें। 2 रेज टू द पावर 4 रेज टू द पावर 2, पावर ऑफ ए पावर गेट्स मल्टीप्लाई, 2 की पावर क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा, 4 2 जा 8। फाइन, आई होप यू हैव अंडरस्टूड। दिस वॉज द बिगेस्ट क्वेश्चन। इसके अंदर 12 पार्ट्स थे, तो आप इसको प्लीज़ एक बार देख ले ध्यान से, जो मैंने छोड़े हैं प्लीज़ डू इट बाय योर सेल्फ। नहीं आता है समझ, प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, आई एम देयर टू हेल्प यू आउट। ओके, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में बताना है स्टेट ट्रू और फॉल्स। आपको बताना है ये ठीक है या गलत है, जस्टिफाई योर आंसर, और अपने आंसर को जस्टिफाई मतलब सॉल्यूशन देना है निकाल के। ठीक है, थर्ड, 10 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज टू द पावर 11 इज इक्वल टू 100 रेज टू द पावर 11, विच इज़ नॉट राइट, क्योंकि जब आप इसको सोल्व करेंगे तो 10 रेज टू द पावर 12 बनेगा, विच इज़ नॉट इक्वल टू 100 रेज टू द पावर 11। तो इसमें आप क्या लिखेंगे, फॉल्स। दोनों पार्ट आपके सेम नहीं आए ना, फॉल्स। सेकेंड, 2 रेज टू द पावर 3 इज ग्रेटर देन 5 रेज टू द पावर 2। 2 रेज टू द पावर 3 होता है 8 और 5 रेज टू द पावर 2 होता है 25। 8 is never greater than 25, that is also false. Third, 2 raised to the power 3 multiply by 3 raised to the power 2 is equal to 6 raised to the power 5। कैसे, 2 की पावर 3 होता है 8, 2 इंटू 2 इंटू 2 है ना, 6 मत कर देना प्लीज़। 3 2 जा, सॉरी आई एम सॉरी, 3 स्क्वायर ऑफ 3 3 3 जा 9 इज इक्वल टू, यहाँ पे बोल रहा है 6 रेज टू द पावर 5, और ये कितना आएगा आपके पास 72। 72 तो 6 की पावर 5 में कहीं पे भी नहीं आ रहा है। ठीक है, विच आर नॉट इक्वल, ये भी आपका क्या आ रहा है, फॉल्स। सारे फॉल्स आ रहे हैं, क्या प्रॉब्लम है भाई। चलिए कोई बात नहीं, आ रहे हैं तो आ रहे हैं। 3 रेज टू द पावर 0 इज इक्वल टू 1000 रेज टू द पावर 0, इसमें यस मिल जाएगा, क्योंकि कोई भी नंबर जिसकी पावर 0 होता है वो क्या होता है 1। सेम, कितना भी बड़ा नंबर हो अगर उसकी पावर 0 है तो आंसर क्या आएगा 1, इसमें ट्रू आएगा आपके पास। ठीक है, दिस विल बी ट्रू। नाउ एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग एज द प्रोडक्ट ऑफ देयर प्राइम फैक्टर्स इन द एक्सपोनेंशियल फॉर्म। ये क्वेश्चन हम कर चुके हैं पिछली एक्सरसाइज में, बट फिर भी हम कर लेते हैं। इसके हमारे पास क्या है, इसके 4 पार्ट हैं, 2 एक जैसे हैं, 2 एक जैसे, हम तो कोई भी 2 उठा के हम कर देंगे, 2 आपके लिए छोड़ देंगे। तो 108 मल्टीप्लाई बाय 192, और एक पार्ट हम ले लेते हैं इसका 4th, वो है 768। देखो हम इसको कैसे करेंगे, 108 मल्टीप्लाई बाय 192, 108 और 192, अलग अलग इनको ब्रेक डाउन कर लेते हैं। 2 से यहाँ पे आएगा 54, फिर 2 से किया तो आया 27, 3 से किया तो आया 9, फिर 3 से आया तो आया 3 से किया तो 1, यहाँ से 2 से ये आ जाएगा 96, 2 से किया तो 48, 2 से किया तो 24, 2 से किया तो 12, 2 से किया तो 6, 2 से किया तो 3 और 3 से किया तो 1। ठीक है,
देखो काउंट कर लेते हैं, 2 कितनी बार आया है, 1 2 3 4 5 6 7 8। हम यहाँ पे पता है कैसे लिख देंगे, 2 रेज टू द पावर 8। या आप इसको चाहे तो ऐसे भी कर सकते हैं, देखो ये रहे ना इसका फैक्टर, 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3, ये तो आ जाएंगे 108 के। बीच में बड़ा सा मल्टीप्लाई, इसके आ जाएंगे 5 टाइम्स 6 टाइम्स 2 और 1 टाइम 3। 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, एक बार हो रहेगा ना, इंटू 2 इंटू 3। ठीक, तो 2 कितनी बार आया, 1 2 3 4 5 6 7 8, 2 रेज टू द पावर 8। 1 2 3 4 और 3 कितनी बार आया, 4 टाइम्स, तो 3 रेज टू द पावर 4। दोनों ही प्राइम फैक्टर्स हैं और प्रोडक्ट की फॉर्म में हमने आंसर को लिख दिया। ठीक है, सेम वे वी विल डू 768। 768 by the table of 2 we will do 2 3 जा 6 8 and 4 192। 192 पे तो फिर यही बन जाएगा है ना, 96 48 24 12 6 3 3 and 1 1 2 3 4 5 6 7 8 8 हो गया ना, 8 and 3 2 2 2 2 2 2 2 2 8 टाइम्स और 8 बार 3। 2 कितनी बार मल्टीप्लाई हुआ है, 8 टाइम्स, 2 रेज टू द पावर 8 मल्टीप्लाई बाय 3। दिस इज द वे हाउ कैन वी ब्रेक डाउन इट इन द फॉर्म ऑफ एक्सपोनेंशियल फॉर्म। और दोनों ही नंबर प्राइम नंबर होने चाहिए, 2 भी प्राइम है 3 भी, सेम यहाँ पे। ओके, देन सी द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज, दैट इज क्वेश्चन नंबर 5। सिंप्लीफाई 2 रेज टू द पावर 5 रेज टू द पावर 2 मल्टीप्लाई बाय 7 रेज टू द पावर 3 डिवाइड बाय 8 रेज टू द पावर 3 मल्टीप्लाई बाय 7। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल पावर ऑफ ए पावर गेट्स मल्टीप्लाइड, पहले इनको सोल्व कर लेते हैं। 2 रेज टू द पावर 10 मल्टीप्लाई बाय 7 रेज टू द पावर 3। हियर वी हैव 8 रेज टू द पावर 3 मल्टीप्लाई बाय 7। ये तो साफ पता लग रहा है, ये सोल्व हो जाएगा। 8 को ब्रेक डाउन करना पड़ेगा 2 की पावर में, 2 रेज टू द पावर 7 रेज टू द पावर 3। 8 को हम कैसे लिख सकते हैं, 2 की पावर 3 एंड होल रेज टू द पावर 3 मल्टीप्लाई बाय 7। 2 रेज टू द पावर 10 मल्टीप्लाई बाय 7 रेज टू द पावर 3। पावर ऑफ ए पावर गेट्स मल्टीप्लाई, ये हो जाएगा 2 की पावर 9 और नीचे है 7। ऊपर 2 की पावर 10 है, नीचे 2 की पावर 9 है। बेस सेम, बीच में डिवाइड का साइन, तो पावर सब्ट्रैक्ट हो जाते हैं। 2 रेज टू द पावर 1 जो कि लिखने की ज़रूरत नहीं होती। 7 रेज टू द पावर 3 में से 1 जाएगा क्योंकि बेस सेम, बीच में डिवाइड का साइन है, तो 7 की पावर क्या बन जाएगा, 2। ओके, दिस इज हाउ द आंसर कैन बी ऑफ दिस पार्ट। सेकेंड, 25 multiply by 5 raised to the power 2 multiply by t raised to the power 8 and denominator 10 raised to the power 3 multiply by 10 t raised to the power 4। 25 को ब्रेक डाउन करेंगे और 10 को ब्रेक डाउन करेंगे। 25 को हम कैसे लिख सकते हैं, 5 रेज टू द पावर 2 ऊपर 5 रेज टू द पावर 2 t रेज टू द पावर 8। देखो इस 10 को हम कैसे लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 5 मल्टीप्लाई बाय 2 रेज टू द पावर 3। 5 और 2 में ब्रेक डाउन कर दिया और t की पावर 4। 5 की पावर 2 5 की पावर 2 5 की पावर 4 बन जाएगा, t की पावर 8। और यहाँ पे 5 की पावर क्या बन जाएगा, ये 3। 2 की पावर कितना बन जाएगा, ये 3। दोनों को अब अलग अलग पावर्स हमने दे दी, 5 को भी दे दी 2 को भी दे दी, और t की पावर 4। 5 की पावर 4 ऊपर है, 5 की पावर 3 नीचे है आपके पास, तो ये बन जाएगा सिर्फ 5। 5 की पावर 1 बनेगा, बट वी में लीव इट एज 5 रेज टू द पावर 1। t की पावर 8 और नीचे t की पावर 4 है, तो क्या बन जाएगा, t की पावर 4 और नीचे कौन रखा है आपके पास, 2 की पावर 3। यू मे लीव योर आंसर हियर, इट इज़ नॉट 23, इट इज़ 2 रेज टू द पावर 3। ओके, यू मे लीव योर आंसर हियर। एंड नाउ द लास्ट पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन आई एम लिविंग फॉर यू। आप इसको कैसे करेंगे, बस थोड़ा सा हिंट मैं आपको दे देती हूँ। जस्ट सी 25 और 10 को भी आप ब्रेक डाउन कर सकते हैं। पहले तो 10 को ब्रेक डाउन कर लेना, 5 इंटू 2 जैसे मैंने यहाँ पे किया था। 25 को आप लिख सकते हो 5 रेज टू द पावर 2। 5 ब्रेक डाउन नहीं हो सकता, 6 ब्रेक डाउन हो सकता है। 6 को भी 3 और 2 में ब्रेक डाउन कर लेना, जैसे मैंने इस क्वेश्चन में 10 को 5 इंटू 2 लिखा था। हियर यू कैन राइट इट एज 3 इंटू 2। Okay, just try this question by yourself. If you are unable to do, please let me know in the comment section. I will send the solution of this part. Okay, if you really like the video, if you have understood the question, please do like it, share it with your friends, and subscribe the channel if you are new, or if you haven't subscribed the channel. We will meet in the next video with the new chapter of your
maths book, not new exercise of your maths book. Till then, goodbye and take care of yourself.